ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਮ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾੜ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾੜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਨਾਥ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਧੰਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪੂਜਨੀਏ ਬੰਤੇ ਧੰਮਾ ਨਾਗ ਮਹਾਥੇਰੋ ਜੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੰਤੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਲੋਟਸ टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत प्रणाम है, तो थैंक यू जी। ओके जी, नमो बुद्धाय। आप सबको बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद। लोटस टीवी के माध्यम से विश्व में जितने भी लोग लोटस टीवी देख रहे हैं उनको आज की आषाढ़ पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा की और वर्षवास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये वर्षवास आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाए, सुख लाए, शांति लाए और आप धम्म के सानिध्य में इसी जीवन में सद्गति, निब्बान, इनलाइटन्स को प्राप्त करें। थैंक यू। तो नाल ही थाईलैंड तो भंते वेन्यूअल वेचान महाथेरो जी आए हैं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम भंते जी ऑन द लोटस टीवी स्टूडियो। थैंक यू। Good evening to our Ubasok and Ubasika, UK and Europe. You are watching Lotus TV and giving blessing on full moon day. Thank you. Thank you very much. ਅੱਜ ਭੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਤੇ ਜੀ, 3 ਭੰਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੀ ਅੱਜ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੰਤੇ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਮ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो उस तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है भंते जी, आशीर्वाद तो पहला कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप दस दिए, उस तो बाद फिर आप अगला प्रोग्राम जो शुरू करते हैं। तो अज एक तो बहुत ही खुशी की गल है कि डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी ने 55 साल पूरे कर लिया है, जिस दी 19 जुलाई ਨੂੰ बहुत ही खुशियां ना अपना मनाई गई है। सोशल इवनिंग के तौर पर बिल्कुल खचाखच भरिया सी हाल। तो इस बारे स्पैशल प्रोग्राम जो है वो अगले हफ्ते कमेटी बारे किस तरह उन्होंने कामकार किए हैं, की काम किए हैं, वो तुहानू अगले हफ्ते लोटस टीवी के स्टूडियो में उस उत्ते चर्चा की जाएगी। अज ये ही अज उन्होंने AGMB कमेटी की हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, जिस विच सारे साल दी रिपोर्टां भी दित्तियां गईयां। खुशी की गल ये है कि उन्हों की चोण भी अज हो गई है।
तो जो अगले साल तक ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਰੇਖਾ ਪੋਲ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਿੰਦ ਕੌਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤਾ ਸੁਮਨ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੁਲਖਰਾਜ ਬੱਦਨ ਜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੋਲ ਜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਨੇਵਰ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈ, ਲਾइब्रेरियन हरमेश जसल जी, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन राहुल चौहान जी, स्टेट सेक्रेटरी दीश दादरा जी। इसी तरह जो मैं मैनेजमेंट अपने कैशियर केयर अपने हाल ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਮਨ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਹਰਬਲਾਸ ਬੰਗੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। IT ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਗੌਤਮ ਰੱਤੂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਰਾਇਨ ਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗਨਰਾਜ ਮੱਲ ਅਤੇ ਦਨੀਤ ਕੌਲ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ IT ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਡੀ ਸਤਿਆ ਸਦਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਔਰ ਸ਼ੀਲਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਾ ਸੁਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜੋਬ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਮਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਨਾਥ ਜਾਣਗੇ, ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਾਗਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਧੰਮ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਭੰਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ जी। थैंक यू जी। सबसे पहले आप सभी को बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के माध्यम से वट महासंपूर्ण बुद्धि विहार में आज आषाढ़ फुल मुंडे, गुरु पूर्णिमा, धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त और वर्षवास का आरंभ किया गया है। काफ़ी अच्छी तरह इसकी शुरुआत हुई है। जो लोग विहार में थे और जो लोग विहार में नहीं आ सके, उन सभी को बुद्ध धम्म
संघ के माध्यम से सुबह आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो और इसी तरह आप धम्म के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करते हुए इसी जीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति करें, सुख की प्राप्ति करें, शांति की प्राप्ति करें और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करें। साधु साधु साधु। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह मैं कहा कि बहुत ही खुशियाना जो कमेटी की 55ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਰੱਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋਹਣਲਾ ਰੱਤੂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਰ ਉੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰੱਤੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹੁਣ। प्यार ना बुझावी इस गुस्से वाली अग नू, प्यार ना बुझावी इस गुस्से वाली अग नू। बुद्ध दा सुनेहा, बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बंद कर अखां तू ख्याल कर चित दा, ओही बंदा सुखी जेड़ा मन नू हो जितदा। जिंदा रह तू खुशी नाल, जिंदा रह तू खुशी नाल, जीन दे सब नू। बुद्ध दा सुनेहा, बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू।
रखदा रात दिन पाड़ी जावे रात दिन पाड़ी जावे लालच दे वग नू बुद्ध दा सुनेहा बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू करके सह गया माड़ा ना तू बनी रखू माड़ा ना तू बनी रखू माड़ा ना तू बनी रखू हथ पाके पग नू बुद्ध दा सुनेहा बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू प्यार ना बुझावी इस गुस्से वाली अग नू प्यार ना बुझावी इस गुस्से वाली अग नू बुद्ध दा सुनेहा बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू बुद्ध दा सुनेहा सुनेहा सारे जग नू बुद्ध ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੇਟ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣ ਰਤੂ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो अज धार्मिक प्रोग्राम ही है, आप धर्म से चर्चा करनी है क्योंकि आप ज्ञान लेना है क्योंकि आपको पूजे भंते जी, दो पूजे भंते जी आए हैं। आप इन्हों तो बेनती करते हैं भंते जी कि ये जी 60 पूर्णिमा भंते जी मनाई गई है, इसकी महत्ता क्या है? वैसे तो बुद्ध धर्म में हर एक पूर्णिमा का अपना एक इम्पोर्टेंस है और आज की जो आषाढ़ पूर्णिमा है ये सारे बुद्ध जगत में बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ में मनाई जाती है। जी जी, क्योंकि आज के दिन बुद्ध ने अपना पहला संदेश मृगदाय वन सारनाथ में दिया था बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जी। और उस संदेश को देते समय उन्होंने अपने उस समय के जो वैरागी थे, उनके साथी थे, 5 और साथी थे उनके। उनका नाम भंते जी क्या है? कौंडन्य, भद्द, वप्प, महानाम, हाँ जी, अश्वजीत, आशुवाजीत, हाँ। ये उनके 5 साथी थे। उसमें से कौंडन्य नामक जो उनका साथी था वो बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते ही
श्रोतापन्न, सकृदगामी, अनागामी और अरत अवस्था उसने प्राप्त कर ली। क्या? इस कारण विश्व के सबसे पहले गुरु बनने का दर्जा भी तथागत भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ। जी और इसे आषाढ़ पूर्णिमा के साथ साथ गुरु पूर्णिमा भी कही गई कही गई है। हाँ कि गुरु के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त होती है जी। वो बड़ी अनमोल होती है। जी बगैर गुरु का ज्ञान अधूरा है। और इस तरह से इस आषाढ़ पूर्णिमा का अपना महत्व बढ़ा। जी लेकिन साथ सिर्फ उस धम्म उपदेश की बात नहीं हुई, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से बुद्ध जगत में वर्षवास का भी प्रारंभ हुआ, वर्षावास। जिसे हम रेनी रिट्रीट भी कह सकते हैं। जी और ये वर्षवास बड़े ही बौद्ध जगत में जी थेरवादा संस्कृति में थेरवादा भिक्षु द्वारा मनाया जाता है। जी उनके माध्यम से अधिष्ठान लिए जाते हैं। तो इसलिए इसके काफी महत्वपूर्ण अनन्य साधारण महत्व आषाढ़ पूर्णिमा के है, गुरु पूर्णिमा के है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, वर्षवास आरंभ दिन भी कहते हैं। तो काफी इसके इंपॉर्टेंस है। जी जी संघ की शुरुआत भी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ और बौद्ध धर्म का जन्मदिन भी इसਨੂੰ ਕਿਹਾ जा सकता। हाँ, बुद्ध के बुद्धत्व के प्राप्त में बुद्ध को लगा कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया तो वो ज्ञान मैं किसे बांटूं। जी जी तो उन्हें अपने पहले गुरु भी याद आए, आलार कलाम उद्धकराम पुत्र। जी लेकिन वो जीवित नहीं थे। जी जी और फिर उसके बाद में बुद्ध को याद आया उनके वो 5 मित्र, और फिर वो 5 मित्रों को बुद्ध ये ज्ञान का उपदेश देते हैं। जी तो इसे धम्म चक्र पवतन सुत्त दिन भी कहा जाता है। और ये धम्म चक्र पवतन सुत्त मीन भिक्षु के जीवन में या उपासक के जीवन में, उपासक के जीवन में होने वाले जो भिक्षु के जीवन में होने वाले जो वर्क है, उस वर्क के ऊपर में जिसे कह सकते कि जीवन का एक चक्र है। और उस जीवन के चक्र में जी अनुलोम प्रतिलोम के साथ साथ काफी घटनाएं घटती है। उन सारे घटनाओं को जी जानते हुए, समझते हुए, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह की देशना देते हुए इन सारे चीजों से परे होकर फिर बुद्ध कहते हैं कि आज मैं सही मायने में सांसारिक जीवन से विरत होकर जी मैं भव चक्र से बाहर निकलकर जी सुख और शांति निब्बान की ओर जी और सत्य का दर्शन मैंने प्राप्त कर लिया है। 4 आर्य सत्य को मैं प्राप्त कर चुका हूँ, आर्य अष्टांगिक मार्ग को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। इन सारे चीजों को प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहते हैं कि जीवन चक्र से बाहर निकलना है, जीवन के भव चक्र से बाहर निकलना है, तो आपको धम्म चक्र पवतन सुत्त जी को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें बुद्ध ने अच्छी तरीके से गंभीरता पूर्वक डीप नॉलेज के साथ में बताई है। थैंक यू जी थैंक यू। फिर किते मौका मिलिया ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ जैसे अष्टांग मार्ग है और भी बहुत कुछ है, 4 आर्य सत्य है, अष्टांग मार्ग है। तो आज बनते जी आपने वार्षिकवाद की है। तो वर्षावाद जो है उसकी उत्पत्ति कब हुई और किसने की इसकी? ये काफी महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा कि वर्षवास की उत्पत्ति कब हुई और किसने की। ये बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में उनने अपना पहला उपदेश अपने पंचवर्गीय भिक्षु को दिया। और फिर उसके बाद यासा नामक एक गृहस्थ था, जी काफी बुद्धिजीवी था और धनी युवक था। जी उस
युवक ने बुद्ध का उपदेश सुनकर वो भी प्रवज्जित हुआ, जी और प्रवज्जित होने के बाद में उसने अपने सभी साथियों को, करीब करीब और 54 साथियों को उसने साथ में लिया और उन्हें भी प्रवज्जित किया। जी। और प्रवज्जित करने के बाद में फिर बुद्ध द्वारा उन्हें 10 दिशा में भेजा गया। जी 10 दिशा भेजने के बाद वो धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए गांव, नगर, डहर हर जगह जाते थे। जी लेकिन उस समय ऐसी कोई विहार की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं नहीं थी। है नहीं की तो जब बारिश होती थी जी तो धम्म प्रचार करने के लिए ये यहाँ से वहां स्थलांतरित होते रहते। जी जी तो बुद्ध का विनय था। जी तो जी जब ये धम्म प्रचार के लिए बारिश में इधर से उधर जाते थे, तो खेत खलियान से गुजरते हुए जाते जी। थे, और बारिश के समय काफी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बाहर निकलते हैं। हाँ, हाँ, तो बहुत। वो भी उनके पैरों में दबकर उनकी हत्या ना हो जाए, उनकी हिंसा ना हो जाए, या फिर कोई जंगली जानवर या कोई विषैले जानवर हाँ। भिक्षुओं को काटना ले हाँ उनकी हत्या ना हो जाए, हाँ सांप उनकी वगैरह बहुत मृत्यु ना बार हो जाए। हाँ ये जी सारे काफी कारण थे। तो फिर ऐसे ही सोचा गया कि हम एक जगह कहीं रुके, जी मगर उस समय रुकने के ना तो विहार थे, नहीं तो ये पेड़ के नीचे रुकते थे। जी जी तो ये पेड़ के नीचे रुकते थे। तो उस समय तब बुद्ध के पास में 3 और भिक्षु गए, जी और वो बुद्ध के साथ में 3 महीने गुजारना चाहते थे बारिश के समय। जी जी लेकिन जब वो निकले तो बीच में काफी बारिश हुई, तो उन्हें सांकेत नगरी में रुकना पड़ा, हाँ जो आज जहाँ पे अयोध्या। बहुत बड़ा मैं उस चीज पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन सांकेत नगरी जो वहां पे रुके, और वहां पे रुकते समय उन्होंने वहां पे धम्म का चिंतन किया, अध्ययन किया, और थोड़ी देर के बाद में फिर वो बाहर निकलना चाहते, फिर उस और बारिश हुई। जी। तो वो बुद्ध को मिलना चाहते थे मगर मिल नहीं पाए, तो उन्होंने पूरे 3 महीने जी, पूरा जी। बारिश का समय सांकेत नगरी में गुजारा। जी लेकिन जब वो निकले बुद्ध के पास में, तो उनका पूरा चिवर गीला हो गया, हाँ पूरा चिवर गंदा हो गया। फिर बुद्ध ने उनसे पूछा, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। जी तब फिर बुद्ध ने कहा कि वर्षा ऋतु में जी हम भिक्षुओं को कहीं एक जगह रुकना एक चाहिए। जगह रुके और फिर एक जगह रुकते हुए जी तब से फिर ये वर्षावास का आरंभ हुआ। आरंभ हुआ और जब ये वर्षावास का आरंभ हुआ तो उस समय ऐसी कोई विहार नहीं बने थे। जी 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 तो फिर जो गुफाएं थी, गुफाएं थी बस तो गुफा में रुकने की व्यवस्था की गई। ओके घने पेड़ होते थे, घने पेड़ के नीचे रुकने की रुकने की व्यवस्था की व्यवस्था गई। की। और इस तरह से 3 महीने एक जगह एक जगह रुककर पर रुकेंगे धम्म का चिंतन करते हुए, कोई श्रोतापन्न अवस्था में जाता था, कोई सकृतगामी अवस्था में जाता था, कोई अनागामी अवस्था में जाता था, और कोई अरहत अवस्था को प्राप्त करता था। जी, तो जी। इस तरह के 3 महीने उनको समय मिलता था धम्म चिंतन करने के लिए, चिंतन करने के लिए धम्म का अध्ययन करने के लिए। और इस तरह से उस समय वो वर्षवास का प्रारंभ हो, तब इसे कहा गया वर्षवास। थैंक यू जो पंत जी हुणी संकेत नगरी का नाम लिया है ना, अजकल उसनों अयोध्या कहा जाता है। ये पंत जी हुणी नहीं उसका नाम लिया। ये तुसी जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਤ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਥੀਨਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਤ ਜੀ ਵਰਸ਼ਾਵਾਦ ਸਿਰਫ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? संपूर्ण बौद्ध जगत में खास तौर पर थेरावादा ट्रेडिशन में जी वर्षावास सिर्फ और सिर्फ भिक्षु कर सकते, जो उपसंपदित भिक्षु है। हाँ नवसिखिया भिक्षु नहीं, या फिर श्रमण नहीं, जी है ना। तो वर्षवास भिक्षु या भिक्षुनी। जी वैसे तो बुद्ध ने भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, जी जी इन सारों को मिलके संघ की उपाधि दी हुई है कि ये संघ है। संघ है। लेकिन इस संघ में थेरवादा भिक्षु ही वर्षवास कर सकता है। जी जी उसे ही किसी एक जगह रहकर जी 3 महीने अधिष्ठान लेते हुए, तो वह अधिष्ठान लेता है 3 महीने।
जी कि मैं 3 महीने इसी विहार में रुककर धम्म का चिंतन करूंगा, जी धम्म का अध्ययन करूंगा जी। और जो कुछ भी मैं ज्ञान की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ूंगा जी। वो ज्ञान को भी मैं अपने उपासक उपासिका के साथ जी साझा करूंगा, उन्हें भी बताऊंगा। तो ये वर्षवास भिक्षु का होता जी। है। मगर प्रश्न है कि उपासक क्या करे? उपासक क्या करते हैं? उपासक इस समय उस भिक्षुओं की जो अध्ययन करने के लिए अग्रसर है, चिंतनशील है, मननशील है, एकाग्र चित्त से आगे बढ़ रहा है, जी। ध्यान कर रहा है, उन्हें, क्योंकि 3 महीने अगर वो कहीं नहीं जा सकता है तो उपासक को इधर उधर जाने की अनुमति है, वो जा सकता है। जी तो उस समय वो जिस विहार में बौद्ध भिक्षु रहते हैं उस विहार में जाकर उन्हें जो दिन की दिनचर्या की जो जरूरत की चीजें होती है जी। वो जरूरत की चीजें उन्हें प्रोवाइड करें, जी जी उनकी सेवा करें, जी जी उनके साथ में धम्म का चिंतन करें, धम्म का मंथन करें, धम्म का अध्ययन जी। करें और सेवा करते हुए वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। फिर भिक्षु के साथ में ध्यान भी कर सकता है, जी भिक्षु के साथ में चैंटिंग भी कर सकता है ना। और इसी तरह से अगर वो करता रहा तो उसे भी उपासक के नाते भी उसे भी श्रोतापन्न होने का लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके पुण्य पारमी बढ़ सकती है। जी जी और ये उपासक भिक्षु की सेवा कर सकता है, भिक्षु धम्म का चिंतन मंथन करके अध्ययन करते हुए जी। बुद्धत्व की ओर बढ़ सकता है, अरहत अवस्था तक बढ़ सकता है। जी पंत जी, आपने बोला है कि वर्षा आती है, बहुत कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जहाँ लोग भिक्षु कुछ फट्टर भी हो जाते हैं, कुछ मौत भी हो जाती है, इसलिए वर्षावास शुरू किया गया था। यूके वर्ग की कंट्री या यूरोप वर्ग की कंट्री, यहाँ तो ये इतना को वर्ष का नुकसान नहीं है, यहाँ क्यों जरूरी है? इंग्लैंड में क्यों जरूरी है? यूके में क्यों जरूरी है? हाँ, अब ये आपका जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का बुद्धत्व, इसकी जड़ें भारत से है। जी भारत से ये धीरे धीरे भगवान बुद्ध का धम्म आज विश्व में फैला हुआ है जी और इसे फैलाने का कार्य उपासक उपासिका साथ ही साथ भिक्षु ने भी किया है। किया है। लेकिन भिक्षु के अपने कुछ विनय है, जो विनय बुद्ध ने लागू किया था बुद्ध के समय, यानी आज से बुद्ध ने कुछ विनय बना दिए थे। जैसे कह सकते कि हम 2500 यानी 2567 ईयर बिफोर जी जी ये सारे विनय स्टार्ट किए गए थे। और ये जो बुद्धिस्ट इरा है इसे हम कह सकते कि 2567 इरा ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बुद्धिस्ट इरा के हिसाब से इतने वर्ष बुद्ध के धम्म को हो चुके जी। हैं। और यूके में जब ये बुद्धिज्म आया तो उसके लिए भी यहाँ पे भी थेरावादा ट्रेडिशन बड़े पैमाने पे अपनाया गया। और काफी ब्रिटिश जो पीपल्स थे वो भी भिक्षु बने जी। और जब वो भिक्षु बने तो सारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को उन्होंने वो अध्ययन, किसी ने थाईलैंड में जाके किया, किसी ने श्रीलंका में जाके किया, किसी ने थाईलैंड में दीक्षा ली, किसी ने श्रीलंका में दीक्षा ली, किसी ने बर्मा में दीक्षा ली। और वहां से फिर वो अपने कंट्री में जब आए, यूके में जब आए, तो यूके में जब आए तो लोगों को कुछ तो देना है। फिर देते समय फिर सारा परिपूर्ण त्याग की जो परिभाषा थी जी। वो वर्षवास के बीच में पता चलती है। फिर चारिका करते हुए पता चलती है। और फिर जब इस तरह से ये ट्रेडिशन जब यूके में लॉन्च हुआ तो लोग बड़े पैमाने में बुद्धिज्म की ओर अट्रैक्ट हुए। और उसी का आप नतीजा देखते हो कि यूके के अंदर में काफी स्कूल और कॉलेज भी वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के अंदर में कन्वर्ट कर गई है ना। तो यूके में भी बुद्धिज्म जरूरी नहीं है कि वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, मगर जुलाई महीने से लेके तो अक्टूबर तक ये वर्षवास का अधिष्ठान हर थेरवादा भिक्षु लेता है, धम्म का चिंतन करता है, मंथन करता है, अध्ययन करता है और अपने आप को तपाता है और खुद तप कर उपासक उपासिका को भी तपाने के लिए प्रेरित करता है।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 772 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਕਾਈ 772, ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕਾਈ 765 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। कल नूं ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ 765 ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। तो पंत जी थैंक यू। पंत जी, वर्षावाद आपने बोला कि 3 महीने चलता है, क्या और धर्मों में भी ऐसी कोई प्रथा है? सिर्फ बुद्ध ने ही इस प्रथा का पालन करते हैं? वैसे तो हर धर्मों में अपनी अपनी एक प्रथा, एक ट्रेडिशन बना चुके हैं। जी। बुद्ध शासन में इसे वर्षवा कहते हैं। जी। जैन लोग इसे वर्षा योग कहते हैं। जी। हिंदू लोग इसे श्रावण मास कहते हैं, मुस्लिम लोग इसे रोजा भी कहते हैं। लेकिन हम बुद्धिज्म की अगर बात करें तो इन सारे चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बुद्ध ने ही इस सिद्धांत को बनाया और फिर उस सिद्धांत के साथ धीरे धीरे ये परिवर्तित होते गया और के धर्मों में भी ये प्रचलित होता गया और उन्होंने उसे अपने दृष्टि के साथ में नाम दिया। जी, उसकी तरह से चलता आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो बुद्धिज्म में ही ये वर्षवास की शुरुआत हुई है और बुद्धिज्म के माध्यम से ही और धर्मों में ये प्रचलित होता गया। तो पंत जी, आप क्या सलाह देंगे कि वर्षावर की शुरुआत कैसे करें? क्या इसमें कोई निज़म लिया जाता है या क्या? बिल्कुल निज़म यानी भिक्षु आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हर विहार में वर्षवास प्रारंभ करते हैं। जी। वर्षवास शुरू करते हुए इसके भी नियम होते हैं, ऐसे होते हैं कि कम से कम जी वैसे तो 5 भिक्षु एक विहार में चाहिए वर्षवास करने के लिए, कम से कम जी। अगर 5 नहीं है तो 3 तो जरूरी हो जी। 3 भिक्षु एक विहार में रहें और फिर वो अधिष्ठान लेकर जी कि हम 3 महीने इसी विहार में रहेंगे, अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, है ना जी। और ये अध्ययन चिंतन मनन करते हुए फिर वो उस विहार में रुकते हैं, विहार की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और इस तरह से वर्षवास का प्रारंभ करते हैं। जी, थैंक यू जी। पंत जी, वर्षावाद के दौरान किस तरह गतिविधियां की जाती है, इसका लाभ किसको प्राप्त होता है? यानी जमीनी तौर पे इसको समझने की कोशिश करें जी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्षवास के समय हम किस तरह के गतिविधि विहार में करें। जी। 3 महीने का आपको समय मिलता है, 90 दिन का आपको समय मिलता है। जी। ये 90 दिन में यानी आज अगर हम अधिष्ठान लेते हैं, है ना, तो बीच बीच में आप चारिका का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जी। है ना, भिक्षु को आमंत्रित करके अपने विहार में, है ना, उन्हें ऑफर कर सकते, दान ऑफर कर सकते हैं। जी। उस बीच में आप 9 सिखिया शिविर भी लगा सकते हो। 9 सिखिया शिविर ने श्रामणीर शिविर का भी आप आयोजन कर सकते हो। जी। साथ ही साथ आप उपासक उपासिका के लिए धम्म शिविर भी आयोजित कर सकते हो जी। कि धम्म के माध्यम से उपासक उपासिका के अपने नियम क्या होते हैं उन्हें आप बता सकते हो। जी जी। 1 डे मेडिटेशन कैंप भी आप चला सकते हो। जी। आप किसी के हेल्पिंग हैंड भी बन सकते हो। जी। सोशल कॉज के ऊपर भी काम कर सकते हो। जी। और इस तरह से आप विहार बना सकते हो। विहार बनाकर भिक्षु को दान कर सकते हो। जी। कोई चीज जो भिक्षु को लगने वाली है वो भी आप भिक्षु को दान कर सकते हो। जी जी। और साथ ही साथ भिक्षु के साथ साथ अगर भिक्षु के पास में कोई चीज एक्स्ट्रा आ भी गई या संग्रहित हुई तो भिक्षु के माध्यम से वो चैरिटी, वो सर्विस
नीडी पीपल को भी की जाती की है, जाती है, ठीक है ना। है, ठीक है। यानी दानन ददयंतु सद्धाय शीलन रखंतु सबधा, यानी अपने शील को परिपक्व करने के लिए दान देना अनिवार्य है। दान से आपकी शील परिपक्व होती है, जब शील परिपक्व होती है तो आपकी प्रज्ञा परिपक्व होती है, जी। और जब आपकी प्रज्ञा परिपक्व होती है तो आप ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, और जब आप ज्ञान में परिपक्व होते हैं तो आप बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। निब्बान की ओर बढ़ते हैं, और सुख और शांति का उपदेश जनमानस को देने के लिए चरित्र भिक्खवे चारिकं करते रहते हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इस तरह से हम वर्षवास के बीच में गतिविधियां कर सकते हैं। हमारे बिहार में भी काफ़ी अच्छी तरह से गतिविधियां चल रही हैं। वन डे मेडिटेशन कोर्स हो रहे हैं, बच्चों के लिए कोर्स हो रहे हैं, बच्चों के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि धम्मा संडे क्लासेस का नाम भी दे सकते हैं, बुद्ध विहारा बडीज के नाम से भी छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये सारे वर्षवास में हम उनको बताया जाए कि बुद्धा क्या था, बुद्धा की टीचिंग क्या थी, बुद्धा की शिक्षा क्या थी, और इतनी जरूरी क्यों है आज के मॉडर्न युग में भी जी, बुद्धा की शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पंत जी। पंत जी, आपने बोला है कि भिक्षु 3 महीने यानी 90 दिन एक ही जगह रहता है, कभी इधर उधर भी नहीं जा सकता? जा सकते हैं, मगर उसके भी कुछ नियम है। अगर हम 3 महीने किसी एक विहार में रहने का अधिष्ठान लेते हैं, जी, और हो सकता है उस बीच में कोई ऐसी आपत्तिजनक घटना घट जाए, जी, और वो आपत्तिजनक घटना घटने के बाद में अगर उससे जाना महत्वपूर्ण है, जी, या फिर कोई इम्पोर्टेंस संघ की मीटिंग है, जी, तो उस समय वो भिक्षु जी, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए विहार से बाहर जा सकता है, जी, और 7 दिन के बाद फिर से, यानी 7 दिन के अंदर ही उसे विहार में आना होता है। जी, तो ये इसलिए दिया गया है ताकि उसके वर्षवास के बीच में कोई खंड ना पड़े, जी, कोई रुकावट पैदा ना हो जाए, और वो रुकावट ना पैदा होने के लिए उसे 7 दिन का एक बुद्ध ने नियम बना के दिया है कि आप 7 दिन के भीतर फिर से अपने विहार में लौट जाइए, और फिर से आप अपना वर्षवास प्रारंभ कीजिए। थैंक यू माता जी। 90 दिन के बाद या 3 महीने के बाद जो कथीना क्यों की जाती है? ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षवास अगर आरंभ है तो कठिना जी। इसका अंत है, जी, जिसे हम कठिना सेरेमनी भी कह सकते हैं, जी, जी, कठिन चिवरदान भी कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वर्षवास के आरंभ से, तो कठिना यानी जुलाई से स्टार्ट होती है, तो ये अक्टूबर में वर्षवास समाप्त होता है, और अक्टूबर महीने से लेके तो नवंबर महीने के पूर्णिमा तक जी, ये कठिना सेरेमनी चलती है। जी, अब इस कठिना सेरेमनी में, अब कठिना सेरेमनी का एग्जाम्पल्स भी काफ़ी है, उदाहरण भी काफ़ी हैं, जी, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना भी है, लेकिन फिर भी एक बार कह दूँ कि भिक्षु के पास में सिर्फ और सिर्फ उस समय वस्त्र सिर्फ एक ही होते थे, और फिर वो इधर उधर भ्रमण करते हुए उनके वस्त्र मलित हो जाते थे, जी। गंदे हो जाते थे, जी, जी, और फिर गंदे होने के वजह से उनको धोना पड़ता था, जी। फिर सुखाना पड़ता था। एक वस्त्र होने के वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इस समय उन्हें और एक वस्त्र जी, देने का वादा विशाखा ने किया था, और विशाखा के माध्यम से उन्हें और एक वस्त्र रखने की परमिशन मिली। जी, जी, अब कठिना की जो बात आई, तो कठिना ऐसी था कि भगवान बुद्ध के समय जी। वर्षवास समाप्त होते समय जी, प्रजापति गौतमी इसने अपने हाथों से चिवर बुना था, हाँ, काफी कठिन परिश्रम के साथ में, हाँ, और उसने चिवर बुनकर भगवान बुद्ध को अर्पण कर दिया। दान किया, हाँ,
तो बुद्ध ने कहा कि हे गौतमी, आपने चिवर तो बनाया, जी। जब बुद्ध ने उसके हाथ देखे तो उसके हाथ लहूलुहान थे, खून से रक्त बमड़ थे। उस समय कोई सिलाई मशीन तो थी नहीं, नहीं जो भी बुनना था हाथ से बुनना हाथों था से ना। होता था, हाँ। तो फिर वो बुनते बुनते उसके हाथ लहूलुहान हुए, और लहूलुहान हुए तो बुद्ध ने कहा इतना कठिन परिश्रम करने के बाद आप ये चिवर मुझे दान दे रहे हो, ये वस्त्र मुझे दान दे रहे हो। जी जी तो गौतमी, जब तक बुद्ध शासन जीवित रहेगा जी तब तक आपके वस्त्र के नाम से एक समारोह होते रहेगा, और उसे, इस वस्त्रों को सिर्फ चिवर नहीं कहा जाएगा, तो इसे कठिन चिवर दान कहा कठिन जाएगा। थी बढ़िया। और तब से फिर ये कठिन चिवर दान जी की ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, Start ये परंपरा चालू हुई। तो आज भी हम देखते हैं त्रिपुरा, थाईलैंड, श्रीलंका, जी। वहां पे जो कठिन चिवर दान, जो चिवर होता है, जी। वो उपासक के माध्यम से बनाया जाता है। हाँ अभी भी ठीक है। अभी भी आप त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम चले जाओ तो वहां पे वस्त्र बनाते हैं उसी रंग में, ढंग में, उसी कलर में, और वो वस्त्र बनाकर वो संघ को अर्पण किया जाता है, और संघ फिर डिसाइड करता है कि वो कौन सा भिक्षु योग्य है, अयोग्य है, उसे वो चिवर दिया जाए। तो इस तरह से वो सारी चीजें होती है। अब आज के मॉडर्न युग में भी हम लोग नहीं ले पाते, तो फिर किसी बनते को, या फिर जैसे हमारे बिहार में कठिना सेरेमनी करना है, तो इस बार खास कठिन चिवर के लिए मदन कोल इनके माध्यम से थाईलैंड से स्पेशल चिवर मंगवा गया, बैग्स मंगवा गए, फैन मंगवा गए। जी तो ये भी एक कठिन श्रम दान है। जी, तो ये कठिन श्रम दान भी होना जरूरी है। जी। इस तरह से ये सारा का सारा जी कठिन समारोह चलता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ भिक्षु और भिक्षु की विधि कहा जाते हैं। जी इसमें उपासक भाग लेते हैं, जी जी नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, जी, और जी। बड़े ही आनंद उल्लास के साथ में कठिना सेरेमनी भी जी, की जी। जाती है। जी थैंक यू जी, थैंक यू माता जी। माता जी समा अपना बहुत जल्दी जा रहा है। आपसे जो लोग घर बैठे हैं उससे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अनुमोदना भी देनी है। तो जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और अपना कॉल के परिवार वालों फुल मून दी है सारे जगत ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। निर्मला भाटिए जी वालों भी बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। मुल्क राज शीश बद्धन वालों भी सारे जगत ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। नंजो रत्तू जी वालों भी डॉक्टर अम्बेडकर मोड़े को 55वें एनिवर्सरी की लख लख ਵਧਾਈ। इस तरह अमिताभ कौलतर, दर्शना कौलतर जी का फोन हॉस्पिटल ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। तो जो कि कमेटी ਨੂੰ 55ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਮਨ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, तो मैं चाहता कि सारे ही जगत ਨੂੰ जो भी साडा टेलीविजन लोटस टीवी देख रहे हैं उन्होंने मनोकामना कीजिए बनते जी। बिल्कुल। तो आज के फुल मून डे के अवसर पर, आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, वर्षभा के आरंभ के शुभ अवसर पर यूके तथा यूरोप के सभी जो लोटस टीवी देख रहे उन सभी दर्शकों को बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। मेरे साथ में थाईलैंड से बनते हैं विचाय, जिनके साथ में हम आप सभी को शुभ आशीर्वाद देंगे पाली चैंटिंग के माध्यम से, ताकि बुद्ध शासन हमेशा पाली भाषा का अनुसरण करता है, और पाली भाषा में सारे बुद्ध का साहित्य बना हुआ है। तो मैं भंते से भी रिक्वेस्ट करूँगा, भंते प्लीज़ गिविंग ब्लेसिंग टू अवर ऑल धम्मा उपासक इन द धम्मा ऑन दिस फुल मून डे। सो प्लीज़। अभिवादन शीलिसा नीचं बुद्धा पच्छायिनो
चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में वच्छ तत्तो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्झतु भवतु सभमंगलं रक्षन्तु सभदेवता सबबुद्धानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते भवतु सभमंगलं रक्षन्तु सभदेवता सबधम्मानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते भवतु सभमंगलं रक्षन्तु सभदेवता सबसंघानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबके जीवन में सुख शांति धन वैभव ऐश्वर्य आप सबको प्राप्त हो। साधु साधु साधु। थैंक यू पंते जी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੰਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਬੱਧਨ ਜੀ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्हों ने पूरा साथ दिता है। तो नाल ही नाल मैं डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी जो चोण हुई है इस दे प्रधान बने हैं रेखा पॉल जी। तो उसके भी बहुत बहुत आप सब नूं बधाई है। फिर तीसरा साल उन्होंने है जी पंते जी की संघ के माध्यम से भी धम्म उपासिका रेखा पॉल इन्हें शुभ आशीर्वाद की फिर से वो प्रधान के लिए चुनी गई है और ये कमेटी के अंदर से एक हिस्टोरिकल बात है। थैंक यू। प्रोग्राम समाप्त है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत जी।